Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will talk about methods of plant nutrition. This is the first topic of chapter number 12 according to our smart syllabus. As we already know, plants generally obtain their food from air or the water in which they grow. प्लांट्स अपनी फूड एयर से वाटर से लेते हैं जहां से वो ग्रो करते हैं. इससे मुराद ये है कि plants use carbon dioxide of the air and water from the soil and make their own food by photosynthesis. Then plants are autotroph. However, there are some special mode of nutrition in plants. Plants generally autotroph हैं. They obtain their food, they produce their food by themselves. But there are some special mode of nutrition as well, जिनको heterotrophic mode of nutrition अक्सर बोल देते हैं. तो first of all, saprophytic nutrition. Feeding on dead and decaying matter, such as dead leaves in the soil, a rotting tree trunk, is saprophytic nutrition. बुक के मुताबिक जो यहाँ इस आर्टिकल में लिखा हुआ है, डेड डीकेइंग मैटर पे फीड करना, जिसमें डेड लीव्स हैं जो सॉइल में मौजूद हों, या रॉटिंग ट्री ट्रंक्स, गले सड़े ट्रीज के जो तने होते हैं जो सॉइल में मौजूद हों, उन पे फीड करना सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है. हमारा कॉन्सेप्ट सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के बारे में ये है कि ऑर्गेनिज्म डीकम्पोज dead organic matter with the help of enzymes into simple substances, and these simple substances are then absorbed by the organism. ये saprophytic nutrition हमें बैक्टीरिया में मिलती है और फंजाई में मिलती है. ऐसे प्लांट्स नोन नहीं हैं जो खुद से डेड ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन करते हों और न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं. Anyhow, they may use some fungi as a mycorrhizal association to decompose dead organic matter to obtain their food, or the plant may use decomposed product produced by the saprophytic bacteria. Anyhow, जो बुक के मुताबिक हमारे लिखा जो हमें याद करना पड़ेगा, saprophytic nutrition, feeding on dead and decaying matter such as dead leaves in the soil or rotting tree trunk is called saprophytic nutrition. They produce extracellular enzymes. Extracellular enzyme आपको पता है, which are produced within the cell but work outside the cell. ऐसे organism extracellular enzyme produce करते हैं which digest the decaying matter and then absorb the soluble products back into the cells. Extracellular enzyme produce करेंगे, वो extracellular enzyme decaying matter को digest करेंगे और उस digestion से जो soluble products बनेगी वो उनके सेल के अंदर absorb हो जाएंगी. This is saprophytic nutrition. जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे बैक्टीरिया में, बहुत सारे फंजाई में saprophytic nutrition होती है. जैसे हमारी बुक का लिखता है कि some bacteria break down the proteins of dead plants and animals and release nitrates. सॉइल के अंदर मौजूद बैक्टीरिया डेड प्लांट्स और डेड एनिमल की बॉडी में मौजूद प्रोटीन को डिकम्पोज करके उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं. These nitrates are taken up by the plant roots. उन नाइट्रेट्स को प्लांट अपनी रूट्स के जरिए टेकअप कर लेते हैं and then built into new amino acid and protein, thus helping in nitrogen cycle. और वो जो नाइट्रेट प्लांट सॉइल से लेते हैं वो अपनी रूट्स के जरिए अपने सेल के अंदर ले जाकर अपनी मर्जी के अमाइनो एसिड बना लेते हैं और उससे प्रोटीन बनाते हैं.
इस तरह से वो ये वाले बैक्टीरिया जो हैं वो नाइट्रोजन साइकिल में हमारी नेचर की हेल्प करते हैं। तो ये सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के बारे में जो हमारी बुक पे लिखा है, जैसे मैंने बताया कि ऐसा बैक्टीरिया में होता है, कुछ फंजाई में होता है, एज सच ऐसे प्लांट्स हैं नहीं जो खुद से डेड ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन करके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हों। वो बैक्टीरिया की डाइजेस्ट की हुई न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं करते हैं, या फंजाई के साथ माइक्रोराइजल एसोसिएशन करके उनकी जो डिकम्पोज प्रोडक्ट्स होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन एनी हाउ जैसे हमारी बुक के मुताबिक लिखा हुआ है हमने वो याद करना है। इसके बाद पैरासिटिक न्यूट्रिशन, feeding by living in or on other organism hosts belonging to different species is called parasitic nutrition. पैरासिटिक न्यूट्रिशन से क्या मुराद है? किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या ऊपर रहते हुए खुराक हासिल करना पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। और जिस ऑर्गेनिज्म से फूड ली जाती है, जिसके अंदर रहकर या जिसके ऊपर रहकर फीड किया जाता है, उसको होस्ट कहते हैं और उसका तल्लक मुख्तलिफ स्पीशीज से होता है। फीडिंग बाय लिविंग इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म होस्ट belonging to different species is called parasitic nutrition. Parasites attach themselves to the living things or their host for nourishment. जो पैरासाइट होते हैं वो लिविंग थिंग्स यानी अपने होस्ट की बॉडी के ऊपर के अंदर या ऊपर अटैच हो जाते हैं न्यूट्रिशन को, नरिशमेंट को, फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए। फॉर ऑब्टेनिंग नरिशमेंट फ्रॉम हायर प्लांट्स, parasitic plant penetrate its sucker in the conducting tissue of the host. हायर प्लांट में से नरिशमेंट को एब्जॉर्ब करने के लिए जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं वो होस्ट के कंडक्टिंग टिश्यू में सकर, सक करने वाले स्ट्रक्चर्स भेजते हैं, पेनिट्रेट करते हैं। फॉर ऑब्टेनिंग नरिशमेंट फ्रॉम हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स से नरिशमेंट को एब्जॉर्ब हासिल करने के लिए द पैरासाइट, जो पैरासाइट होते हैं, पेनिट्रेट इट्स सकर, अपने सकर पेनिट्रेट करते हैं इन द कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ द होस्ट, होस्ट के कंडक्टिंग टिश्यू में, यानी होस्ट की जो जाइलम और फ्लोएम होती है, जो वस्कुलर टिश्यू होती है, उसके साथ कनेक्शन कायम कर लेते हैं एक खास किस्म के स्ट्रक्चर्स के जरिए जिन्हें सकर्स कहते हैं, जिन्हें हॉस्टोरिया कहते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल दी है हमारी बुक वाले ने, पक्सिनिया, ये प्लांट नहीं है, ये एक पैरासिटिक फंगस है जो वीट प्लांट में मुख्तलिफ किस्म की डिजीज पैदा करता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो पक्सिनिया पैरासिटिक फंगस है। ये यहाँ एग्जाम्पल इसलिए दी गई है कि ये ओल्ड लिटरेचर में, क्योंकि हम फंजाई जो थे और बैक्टीरिया जो थे वो उनको प्लांट में कंसिडर की जाते करते थे, बॉटनी वाले पढ़ते थे, इसलिए उन्होंने एग्जाम्पल वही ठोकी हुई है यहाँ पर। तो एनी हाउ एक पैरासिटिक प्लांट्स भी होते हैं जिसमें एक वेल नोन एग्जाम्पल डोडर कस्कूटा, ये एक पैरासिटिक प्लांट है। इट इज अ लीफलेस, इसमें लीफ नहीं होते, दैट लीव्स द ट्वाइनिंग पैरासाइट, और ये होस्ट के इर्द गिर्द घूमता है, इसलिए उसको ट्वाइनिंग पैरासाइट कहा गया। तो सबसे पहले हमने ये बात की कि पैरासिटिक प्लांट्स जो होते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है? फीडिंग बाय लिविंग इन और ऑन other organism yani host belonging to different species is called parasitic nutrition. Then parasite attack themselves the living things or their host for nourishment. अपनी नरिशमेंट के लिए पैरासाइट लिविंग थिंग्स के अंदर या ऊपर अटैच हो जाते हैं। और यहाँ वो पैरासिटिक प्लांट्स की बात कर रहा है कि इन ऑर्डर टू गेट food from the higher plants, parasites penetrate their suckers into the conducting tissue of the host. Example में पक्सिनिया जो पैरासिटिक फंगस है जो वीट प्लांट को डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन जो पैरासिटिक प्लांट की यहाँ एग्जाम्पल है डोडर कस्कूटा, अमरबेल भी इसको कहते हैं, ये लीफलेस ट्वाइनिंग पैरासाइट होता है। अक्सर
आपने देखा होगा, या आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर येलो कलर की वायर्स जो है वो लिपटी हुई होती है उसके इर्द गिर्द। ये जो येलो कलर की वायर लीफलेस प्लांट से होते हैं येलो कलर के, ये कस्कूटा कहलाता है, ये डोडर कहलाता है, ये अमरबेल कहलाता है। ये एक पैरासिटिक प्लांट है। ये जो कस्कूटा होता है इस तरह से ये होस्ट के इर्द गिर्द लिपटा हुआ होता है। ये येलो कलर की वायर जो है ये पैरासिटिक प्लांट कस्कूटा है, और ये जो स्टेम जो है ये होस्ट प्लांट का है। जब ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा है तो ये अपनी बॉडी से, यानी कस्कूटा अपनी बॉडी से जो इसका जो स्टेम है उससे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होस्ट के टिश्यू के अंदर भेजता है। आप ये सेक्शन काटा हुआ है, थैंक्स टू रिसर्चर हु गिव दिस डायग्राम, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं जिसके मैंने कॉपी किया है। यहां पर ये उस होस्ट प्लांट का ट्रांसफर सेक्शन है, ये वाला और ये वाला, ये इस प्लांट का सेक्शन काटा हुआ है, और ये उसके इर्द गिर्द वो कस्कूटा प्लांट लिपटा हुआ है। तो कस्कूटा जो है अपनी बॉडी से छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स ये वाले होस्ट के कंडक्टिंग टिश्यू के अंदर पेनिट्रेट करता है। इनको हॉस्टोरिया कहते हैं या सकर्स कहते हैं। तो ये सकर या हॉस्टोरिया होस्ट टिश्यू के अंदर जो है वो पेनिट्रेट होकर वहां से नरिशमेंट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये थे पैरासिटिक प्लांट्स। इसके बाद है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सबसे पहले यहां हमें उसने सिम्बायोसिस को डिफाइन करके बताया। सिम्बायोसिस क्या है? इट इज द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म लिविंग इन एसोसिएशन विद वन अनदर। म्यूचुअल न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। म्यूचुअल न्यूट्रिशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म लिविंग इन एसोसिएशन विद वन अनदर, एंड दीज ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू डिफरेंट स्पीशीज। तो symbiotic nutrition is a nutrition in which two organisms belong to different species provide nutrition to each other. Symbiotic nutrition क्या है? दो ऑर्गेनिज्म जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ स्पीशीज के साथ होता है वो एक दूसरे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। इसकी एग्जांपल्स भी तीन हम यहां पर देंगे। लाइकन्स, माइकोराइजी and root nodules with the nitrogen fixing bacteria. सबसे पहले लाइकन्स हम 8th चैप्टर में पढ़ के आए हैं। लाइकन्स is a mutualistic relationship between fungus and algae. Lichen is made up of fungus and alga cells. आपको पता है लाइकन एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, और उस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का कुछ हिस्सा अल्जी पे मुश्तमिल होता है और कुछ फंजाई पे मुश्तमिल होता है। Algae make food by photosynthesis. जो algae है इस एसोसिएशन में, क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक है, वो अपनी फूड सिंथेसाइज करता है। दिस फूड इज नॉट ओनली यूज्ड बाय algae बट आल्सो प्रोवाइडेड टू फंगस। वो फूड फंजाई भी इस्तेमाल करता है। While the fungus supply water and minerals to the algae. algae जो है वो फंजाई को फूड प्रोवाइड करता है अपनी फोटोसिंथेसिस के जरिए, और फंजाई अल्जी को क्या देता है? वाटर एब्जॉर्ब करके देता है, मिनरल एब्जॉर्ब करके देता है। क्यों? दोनों का फायदा हो जाता है। और एट द सेम टाइम फंजाई आल्सो गिव प्रोटेक्शन टू अल्जी। फंजाई प्रोटेक्ट अल्जी अगेंस्ट डेसिकेशन। फंजाई अल्जी को खुश्की से, ड्राई कंडीशन से बचाता है। तो लाइकन इज अ mutualistic relationship between fungus and algae. In this relationship, algae make food by photosynthesis, while fungi provide water and mineral to algae and also protect algae from desiccation. दूसरी म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन जो है वो जहां माइकोराइजा की बात की गई है। माइकोराइजा is an association between fungus and roots of higher plants. ये फंजाई और हायर प्लांट्स की रूट्स के दरमियान एसोसिएशन होती है। इसमें किस तरह से एक दूसरे को फायदा पहुंचाया जाता है? फंगस डिपेंड्स अपॉन द फोटोसिंथेट ऑफ द प्लांट। फंजाई प्लांट के फोटोसिंथेट पे इन्हसार करता है।
फोटोसिंथेट मीन द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फंगस जो है वो प्लांट की फोटोसिंथेसिस की बनाई हुई फूड पे गुजारा करता है, यानी फंजाई गेट फूड फ्रॉम द प्लांट्स। द बेनिफिट derived by the mycorrhizal plant is not properly understood। वो कहता है कि प्लांट्स को क्या फायदा होता है इस एसोसिएशन का, ये कोई इतना वेल नोन नहीं है, लेकिन ये भी कोई पुरानी बात है, ये अब वेल नोन है। It is known that plants with the mycorrhizal association show better growth than those without fungal partner। वो प्लांट जिनमें माइक्रोराइजल एसोसिएशन होती है वो ज्यादा बेहतर तरीके से ग्रो करते हैं उन प्लांट की निस्बत जिनमें जो है माइक्रोराइजल एसोसिएशन नहीं होती। फंजाई तो प्लांट से फूड लेता है और इन टर्न जो फंजाई होता है वो अपनी हाइफी के जरिए प्लांट का एब्जॉर्प्टिव एरिया बढ़ा देता है। जो हाइफी होता है उसका थोड़ा फंजाई का हाइफी थोड़ा सा प्लांट की रूट के अंदर बाकी सॉइल के अंदर फैला हुआ है और वो सॉइल के मुख्तलिफ हिस्सों से सॉइल दूर दराज इलाकों से यानी एरिया से रूट के लिए मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है, उसकी फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, उसकी जिंक की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, उसकी कॉपर की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। मतलब ये है कि फंजाई प्लांट का एब्जॉर्प्टिव एरिया बढ़ा देता है, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट ज्यादा सप्लाई करने में मदद देता है, इस तरह से प्लांट की ग्रोथ जो है वो बेहतर होती है। इसके बाद लेगुमिनस प्लांट्स जो फली वाले पौधे होते हैं जिनका फ्रूट लेग्यूम होता है, फली होता है, उन्हें लेगुमिनस प्लांट्स कहते हैं। एक ग्रुप ऑफ प्लांट्स है जिनमें जिनका ताल्लुक इससे है। लेगुमिनस प्लांट हैव नोड्यूल्स ऑन देयर रूट्स। जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स के साथ छोटी छोटी या बड़ी स्वेलिंग्स होती हैं, उन स्वेलिंग्स को नोड्यूल्स कहते हैं। उन नोड्यूल्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहते हैं, राइजोबियम बैक्टीरियम, इसके अलावा भी होते हैं लेकिन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल राइजोबियम बैक्टीरिया है जो उस रूट नोड्यूल के अंदर रहता है। वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वो एयर की नाइट्रोजन जो N2 की फॉर्म में होती है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है कि जो एटॉमिक नाइट्रोजन, डाई एटॉमिक नाइट्रोजन, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है उसको किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिस्सा बना दिया जाता है, यानी उसको नाइट्रेट में नाइट्राइट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो लेगुमिनस प्लांट की रूट्स के साथ आप देख सकते हैं ये रूट है और रूट के साथ जो छोटी छोटी स्वेलिंग्स लगी हुई हैं इन स्वेलिंग्स को कहते हैं रूट नोड्यूल्स। अब रूट नोड्यूल्स के अंदर कौन रहते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहते हैं जो एयर की नाइट्रोजन को सॉइल की नाइट्रोजन में N2 को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। दिस नाइट्रेट इज टेकन अप बाय रूट्स। जैसे हमारी बुक पर लिखा कि जो कंटेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, द बैक्टीरिया लिव ऑन द प्लांट मटेरियल। बैक्टीरिया को क्या फायदा होता है? बैक्टीरिया को प्लांट की बनी बनाई फूड मिल जाती है, बैक्टीरिया को रहने के लिए घर मिल जाता है एंड फिक्स नाइट्रोजन, और वो नाइट्रोजन फिक्स करता है। जैसे मैंने बताया कि फिक्स नाइट्रोजन से मुराद ये है कि वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है व्हिच इज यूज्ड बाय प्लांट्स। इन दिस वे प्लांट का भी फायदा हो जाता है और उस बैक्टीरिया का भी फायदा हो जाता है, ये भी म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है। इसके बाद है न्यूट्रिशन इन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। There are few plants that supplement their inorganic diet with organic compounds। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? Supplement their inorganic diet with organic compound। ये प्लांट्स जो हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस्तेमाल करके अपनी फूड फोटोसिंथेसिस के जरिए खुद बनाते हैं। यूं वो इनऑर्गेनिक डाइट ले रहे हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इनऑर्गेनिक डाइट कहा, लेकिन साथ ही साथ वो इसमें इजाफा करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ऐसे हैं जो अपनी इनऑर्गेनिक डाइट में ऑर्गेनिक कंपाउंड का इजाफा करते हैं। दे सप्लीमेंट देयर इनऑर्गेनिक डाइट विद ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी इनऑर्गेनिक डाइट से मुराद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में इजाफा करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का।
These organic compounds are obtained by trapping and digesting insects and small animals. वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां से आते हैं? जैसे पहली लाइनों में ये बात की कि कुछ प्लांट्स यानी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो हैं वो अपनी इनऑर्गेनिक डाइट में ऑर्गेनिक कंपाउंड का इजाफा करते हैं। इनऑर्गेनिक डाइट से मराद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जिसको वो इस्तेमाल करके अपनी फोटोसिंथेसिस के जरिए फूड तैयार करते हैं। और वो अब अगली बात ये हो गई कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां से लेते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर obtained by tapping and digesting the insects and other small animals. छोटे एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और उनको डाइजेस्ट करते हैं। और याद रखें, ऑल ऑफ द इंसेक्टिवोरस प्लांट आर ट्रू ऑटोट्रॉफ। उनमें फोटोसिंथेसिस होती है, वो ऑटोट्रॉफ होते हैं, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, बट व्हेन दे कैप्चर प्रे द ग्रोथ बिकम्स रैपिड। और ऐसे प्लांट जो प्रे को कैप्चर करते हैं, जो इंसेक्ट को कैप्चर करते हैं, ग्रोथ ग्रोथ बेहतर हो जाती है, तेज हो जाती है। अपेरेंटली लगता यह है कि नाइट्रोजनस कंपाउंड्स ऑफ द एनिमल बॉडी आर ऑफ बेनिफिट टू दीज प्लांट। लगता यह है कि जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं उन एनिमल्स के, उन इंसेक्ट्स के जिनको वो ट्रैप करते हैं, वो उनके लिए फायदेमंद है। अब असल में होता यह है कि these insectivorous plants live in the area where there is a deficiency of phosphorus, there is a deficiency of nitrogen. ये ऐसे एरियाज में रहते हैं, जैसे मार्शी एरियाज में रहते हैं, दलदली इलाकों में रहते हैं, यहाँ सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है। तो इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन और फास्फोरस रिक्वायरमेंट, दे ट्रैप एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स। अब उन इंसेक्ट्स को, उन स्मॉल एनिमल्स को ट्रैप तो कर लिया मुख्तलिफ तरीकों से, उनको डाइजेस्ट कैसे करते हैं? इन सम प्लांट्स द ट्रैप इंसेक्ट्स आर डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया, इन अदर द ट्रैप इंसेक्ट्स आर डाइजेस्टेड बाय एंजाइम सेक्रेटेड बाय द लीव्स। कहीं कहीं बैक्टीरिया उसको, उनके प्रोटीन वगैरह को डाइजेस्ट करते हैं, और कहीं उनके लीव्स जो हैं वो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं उनके इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करने के लिए। द प्लांट्स देन अब्सॉर्ब द नाइट्रोजन कंपाउंड दस फॉर्म्ड। उस डाइजेशन के बाद जो सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड बनते हैं, प्लांट उनको एब्सॉर्ब कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल्स कुछ दी गई। पिचर प्लांट सारासिनिया पपूरिया। पिचर प्लांट क्या है? सारासिनिया पपूरिया उसका बोटेनिकल नेम। हैज लीव्स मॉडिफाइड इनटू सैक और पिचर। उनका लीफ जो है, ये आप देख सकते हैं, उनका लीफ का एंड जो है वो मॉडिफाइड होकर यूं एक गड़ा सा पिक्चर सा बन जाता है, और इस पिक्चर के अंदर पानी होता है, बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, और जो लीफ का मार्जिन होता है ये वाला, वो उसकी लिड बन जाती है, कवरिंग बन जाती है। तो पिक्चर प्लांट में सम पार्ट ऑफ द लीफ is modified to form a sac, एक थैली सी बन जाती है जिसको पिक्चर कहते हैं, and the margin of the leaf become the lid। आप देख सकते हैं, हमने लिखा पिक्चर प्लांट Sarracenia purpurea has leaves modified into sac or pitcher partly filled with the water. The end of the leaf is modified to form hood। वो lid सी बन जाती है, हुड कवरिंग सी बन जाती है, विद पार्टली कवर द ओपन माउथ ऑफ द पिक्चर। वो पिक्चर के गड़े के ओपन माउथ को कवर कर लेती है। स्मॉल इंसेक्ट्स दैट फॉल इनटू द पिक्चर आर प्रिवेंटेड फ्रॉम क्लाइंबिंग आउट बाय न्यूमरस स्टिफ हेयर्स। एनिमल, छोटे इंसेक्ट्स वगैरह पानी लेने के लिए इस पिक्चर के अंदर आते हैं, वो बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि इस पिक्चर के अंदर होते हैं बैकवर्डली डायरेक्टेड स्टिफ हेयर्स। हेयर से होते हैं, कांटे से होते हैं, वो स्टिफ हेयर जो हैं वो इंसेक्ट को बाहर निकलने से रोकते हैं, जिसकी वजह से स्मॉल इंसेक्ट दैट फिल द पिक्चर fall into the picture, sorry, are prevented from climbing out by numerous stiff hairs। बहुत सारे न्यूमरस तेज हेयर्स हैं अंदर जो इंसेक्ट्स को बाहर निकलने से रोकते हैं। The proteins of trapped insects are decomposed by bacteria or enzyme। जो ट्रैप इंसेक्ट की प्रोटीन होती है
वो बैक्टीरिया से या इंजाइम से डाइजेस्ट हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस डिके आर एब्जॉर्ब्ड बाय द इनर सरफेस ऑफ द पिक्चर लीफ। और डीके के बाद जो सिंपल सब्सटेंसेस बनते हैं, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, लीफ, पिक्चर लीफ की सरफेस, अंदर वाली सरफेस उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो पिक्चर प्लांट में जो सबसे पहले आपको याद रखना है, इसका बोटानिकल नेम सैरासीनिया पर्पुरिया। फिर इसमें इंसेक्टिवोरस एक्टिविटी के लिए मॉडिफिकेशन क्या है, इसका लीफ मॉडिफाइड into sac or pitcher which is filled partly with the water. The end of the leaf is modified to form hood or lid, or which covers the mouth, the pitcher, or small insects fall into the pitcher. They come for water and then they uh, try to move out of the pitcher, but the stiff hairs present in the pitcher, which are directed backward, prevent the insect from climbing out of the pitcher. और फिर अंदर ही अंदर जो इंसेक्ट्स रह गया, उसकी डाइजेशन, उसकी डिकम्पोजिशन कौन करता है, बैक्टीरिया वहां प्रोड्यूस होते हैं, वो डिकम्पोजिशन कर सकते हैं, या इंजाइम सक्रीट होते हैं, वो डिकम्पोजिशन करते हैं, और जो प्रोडक्ट बनती है उसको लीफ की अंदर वाली सरफेस एब्जॉर्ब कर लेती है। ये आप फोटोग्राफ देख सकते हैं जिसमें लीफ का एंड जो है वो मॉडिफाइड होकर पिक्चर बन गया और उसके ऊपर ढक्कन सा है, ये उसकी डायग्रामेटिकली है। देन एक और एग्जांपल है वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप का बोटेनिकल नाम है डायोनिया म्यूसिपुला। इसमें लीफ इज बाइलोब्ड विद मिडरब बिटवीन देम। इसका लीफ बाइलोब्ड होता है, जैसे आप देख सकते हैं ये एक लीफ है वीनस फ्लाई ट्रैप का, एक लोब ये वाला और एक लोब ये वाला, सेंटर में इस जगह पर मिडरब होती है, और लीफ के जो लोब्स के मार्जिन पे स्टिफ ब्रिसल्स हैं कांटे से, ठीक है। तो वीनस फ्लाई ट्रैप में लीफ इज बाइलोब्ड विद द मिडरब इन द सेंटर। लीफ की सरफेस पे स्मॉल सेंसिटिव हेयर्स हैं। जब कोई इंसेक्ट आकर उन सेंसिटिव हेयर को टच करता है तो दोनों लोब्स जो हैं वो क्लोज टुगेदर, वो दोनों लोब जो हैं वो बंद हो जाते हैं और ब्रिसल उनको इंटरलॉक कर लेते हैं, जिस तरह की वजह से वो इंसेक्ट अंदर ही अंदर डाइजेस्ट हो जाता है। बुक वाला लिखता है, सॉरी, वीनस फ्लाई ट्रैप डायोनिया म्यूसिपुला, द लीफ इज बाइलोब, दो लोब्स लोथनों पर मुश्तमिल है, विद द मिडरब बिटवीन देम। There is a row of long stiff bristle along the margin of each lobe. हर लोब के मार्जिन पे लॉन्ग स्टिफ ब्रिसल की रो है, ये वाली, ये लीफ के मार्जिन पे ब्रिसल्स हैं, इनको जिक्र कर रहा है। When an insect touches small sensitive hair on the surface of the leaf, लीफ की सरफेस पे जैसे मैंने बताया स्मॉल सेंसिटिव हेयर हैं, जब इंसेक्ट उनको टच करता है द लोब्स क्विकली कम टुगेदर, लोब्स इकट्ठे हो जाते हैं, करीब आ जाते हैं, विद द ब्रिसल इंटरलॉक, और जो ब्रिसल्स हैं वो एक दूसरे के अंदर फंस कर लॉक कर लेते हैं। द ट्रैप इंसेक्ट्स इज देन डाइजेस्टेड बाय द एंजाइम secreted from the glands on the leaf surface. लीफ की सरफेस के ऊपर ग्लैंड्स हैं जो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं और वो ट्रैप इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं, and the products are then absorbed. इसके बाद लास्ट एग्जांपल सनड्यू, जिसका बोटेनिकल नेम है ड्रोसिया इंटरमीडिया। सनड्यू एक और इंसेक्टिवोरस प्लांट है, बोटेनिकल नेम ड्रोसिया इंटरमीडिया। शो अनदर टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ फॉर इंसेक्टिवोरस एक्टिविटी। इसमें इंसेक्ट्स खाने के लिए, इंसेक्टिवोरस एक्टिविटी के लिए लीफ में एक और किस्म की मॉडिफिकेशन है। द टाइनी लीव्स बियर न्यूमरस हेयर लाइक टेंटिकल्स। ये आप देख सकते हैं, ये टाइनी लीव्स हैं, लीव्स के ऊपर हर तरफ सराउंडिंग में ये पिंक कलर के टेंटिकल्स हैं, और टेंटिकल्स के टिप के ऊपर ग्लैंड्स हैं जो टॉक्सिक प्रोड्यूस करते हैं, जहर प्रोड्यूस करते हैं। तो सनड्यू में जो टाइनी लीफ हैं आर सराउंडेड बाय न्यूमरस हेयर लाइक टेंटिकल्स, ईच विद द ग्लैंड एट इट्स टिप, जिसके टिप पे ऊपर ग्लैंड है। द इंसेक्ट्स आर अट्रैक्टेड बाय द प्लांट्स ऑडर। प्लांट्स की खुशबू की वजह से
इंसेक्ट्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं एंड आर इंटेंगल्ड और फंस जाते हैं. द प्रोटीन ऑफ द इंसेक्ट्स आर डाइजेस्टेड बाय द एंजाइम एंड द प्रोडक्ट्स आर एब्जॉर्ब. इंसेक्ट, ये देखें, इंसेक्ट दो लीफ के बीच में फंसा हुआ है, फिर एंजाइम उसकी प्रोटीन को डाइजेस्ट करती हैं और प्रोडक्ट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं. दिस इज ऑल अबाउट द इंसेक्टिवोरस प्लांट. And at the same time, this is all about the method of nutrition in plants. Thank you very much.